باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ سلیپی راستے کے 14 مقام۔ اے ہمارے عزیز خداوند جو ہمارے پیار کی خاطر صلیب کے راستے پر مرنے کو گیا، ہم آج تیری مصیبتوں پر دھیان کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ تو مصیبتیں اٹھا کر ہمارا نمونہ بن گیا تاکہ ہم بھی تیری مصیبتوں میں شریک ہو کر تیرے جلال تک پہنچ سکیں۔ ہمیں اس سفر میں اپنا بڑا پیار یاد دلا اور گناہ سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر۔ ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تیرے دکھوں اور صلیبی موت کی خاطر ہمارے بھائیوں کو جو اعراف میں دکھ سہتے ہیں رعایت اور رحم حاصل ہو۔ آمین۔ پہلا مقام، یسوع پر موت کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی پاک صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ اے میرے پیارے یسوع، پیلاطس نے تیرے دشمنوں کے ڈر سے تجھ پر موت کا ناجائز فتویٰ دیا ہے۔ آج ہم اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بھی بہت دفعہ دنیا کے ڈر سے تیرا انکار کر کے تیری حکم عدولی کی ہے۔ ہمیں یہ دلیری بخش کہ آئندہ ہم ہرگز تیرا انکار نہ کریں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ دوسرا مقام، یسوع اپنی صلیب اٹھاتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی پاک صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ اے میرے پیارے یسوع، تو نے ہمارے بدلے اپنی صلیب کا بوجھ خوشی سے اٹھایا ہے۔ تجھ میں کوئی گناہ نہ تھا، مگر ہم میں بہت گناہ ہیں اور ہم بے حد سزا کے لائق ہیں۔ ہمیں یہ فضل بخش کہ ہم دلیری اور مسیحی صبر سے اپنے سب دکھوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے گناہوں کے لیے کچھ ریاضت کریں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ تیسرا مقام، یسوع صلیب کے بوجھ کے نیچے پہلی دفعہ گرتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی پاک صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ اے میرے پیارے یسوع، تو ہمارے گناہوں کے سبب اور ہمارے پیار کی خاطر اس قدر کمزور اور لاچار ہو گیا ہے کہ صلیب کے بوجھ سے منہ کے بل گر پڑا۔ تیری کمزور اور لاچار حالت ہمارے سخت دلوں کو نرم کرے اور ان میں سچی توبہ اور گناہ سے نفرت
पैदा करे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। आई मुकद्दसा मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। हम पर रहम कर ए खुदावंद। चौथा मकाम, यीशु को उसकी गमज़दा माँ रास्ते में मिलती है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यीशु, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था तो तेरे सब शागिर्द तुझे छोड़कर छुप गए, मगर तेरी मुबारक माँ ने तुझे ना छोड़ा, ना बेइज्जतियों और लानतों की परवाह की, बल्कि तेरे साथ सलीब के रास्ते पर चलती गई। ऐ मसीह की बेदाग माँ, मुझे ये दलेरी सिखा कि मैं सुख और दुख में, इज़्ज़त और बेइज्जती में तेरे बेटे की वफ़ादार हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफ़ज़ल, खुदाम तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। हम पर रहम कर ए खुदावंद। पांचवा मकाम, शमाउन करीनी यीशु को सलीब उठाने में सहारा देता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। इस बात के डर से कि शायद मसीह कमज़ोरी के सबब से कलवरी तक ना पहुंच सके, यहूदियों ने एक शख्स बनाम शमाउन करीनी को बेगार में पकड़ा ताकि वो यीशु की सलीब उठा कर चले। ऐ प्यारे यीशु, हम भी गरीबों की मदद करने से तेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो मेरे लिए ही किया जाएगा। हम मजबूरन नहीं बल्कि मकदूर भर खुशी से उनकी मदद करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। आई मुकद्दसा मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। हम पर रहम कर ए खुदावंद। छठा मकाम, वेरोनिका यीशु का मुंह पोंछती है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। ऐ मसीह, किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है, और कांटों के ताज ने तेरे अजीज़ मुंह को लहू लहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। कैसी दिलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजर कर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पोंछा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श कि मैं अपनी दुनियावी इज़्ज़त की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातर बेइज्जती में खुश रहूं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। हम पर रहम कर ए खुदावन। 7वां मकाम, यसु दूसरी दफ़ा गिरता है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। सोचो कि खुदावंद यसु मसीह की हालत कैसी लाचार हो गई है। पहले वो बाग में जानकनी में आकर इस कदर गमगीन हो गया कि उसके तमाम बदन से खून का पसीना निकला। फिर सारी रात सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की और बेरहमी से कांटों का ताज उसके सर पर दबाया। अब वो चलने के काबिल ना रहा और दूसरी दफ़ा मुंह के बल गिर पड़ा। ऐ प्यारे यसू, मैं बार बार गुनाह में गिरती हूँ और तू बार बार मुझे मुआफ़ी बख्शता है। मैं तेरे सब्र और तेरे रहम की बेहद शुक्रगुजार हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन। हम पर रहम कर ए खुदावन। 8वां मकाम, यसू रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। मसीह का बुरा हाल देखकर बहुत सी औरतें उसके पीछे रोती और मातम करती हुई चल पड़ी, मगर यसू ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, बल्कि खुद पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि जब हरे दरख्त से ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे से ज़रूर करेंगे। ऐ खुदावंद, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम तो सूखे दरख्त हैं, हम आज तक कोई नेकी का फल नहीं लाए, बल्कि बहुत से गुनाह किए और बेहद सज़ा के लायक हैं। हमें पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा करने का फजल बख्श, और आइंदा नेक रस्ते पर चलने की ताकत दे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। हम पर रहम कर ए खुदावन। 9वां मकाम, खुदावन यसु तीसरी दफ़ा गिरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। खुदावन मसीह ऐसा कमज़ोर हो गया था कि मुश्किल से चल सकता था, फिर भी सिपाही बेरहमी से उसको धमकाते, उस पर गालियाँ बकते और उसको मारते हैं ताकि कुछ जल्दी चले। लेकिन हमारे खुदावन में इतनी ताकत नहीं रहती और वो उनके जुल्म के सबब तीसरी दफ़ा गिरता है। ऐ खुदावन, हम तो 3 दफ़ा नहीं बल्कि बेशुमार दफ़ा गुनाह में गिरते रहते हैं। हमें ये फ़ज़ल बख्श कि हम कभी गुनाह की हालत में पड़े ना रहें, लेकिन जितनी दफ़ा गिरते हैं उतनी दफ़ा सच्ची तौबा
और सच्चा एतराफ़ करके उठ खड़े हो जाएं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। आय मुकद्दसा मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। हम पर रहम कर ए खुदावंद। 10वां मकाम, सिपाही यीशु के कपड़े उतारते हैं। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। पिलातुस की कचहरी में सिपाहियों ने बड़े ज़ोर और जोश से मसीह को कोड़ों से मारा था, इस हद तक कि उसका सारा जिस्म लहू लहान हो गया था। इन ज़ख्मों में यीशु के कपड़े चस्पा हो गए थे, और अब सिपाही इनको खींचकर उतारते हैं। उसके तमाम ज़ख्म फिर से खुल जाते हैं और उसके बदन से खून बह निकलता है। ऐ खुदावंद, हमने कितनी दफ़ा पाकदामनी के ख़िलाफ़ गुनाह करके अपने बदनों की, जो रूहुल कुद्दस की हैकल हैं, बेइज्जती की है। तूने इन गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेऐब बदन में कितने दुख और तकलीफ़ें सही। आइंदा हम तेरे पाक फजल की मदद से सब गुनाहों से दूर रहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। हम पर रहम कर ए खुदावंद। 11वां मकाम, मसीह सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। जब सिपाही उस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ा, और 2 डाकुओं को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ खुदावंद, तूने अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके उनके लिए मुआफ़ी चाही, लेकिन मैं अक्सर औक़ात छोटी सी बातों की खातिर अपने पड़ोसी से हसद रखती और उससे बदला लेना चाहती हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी ना रखूँगी, बल्कि मोहब्बत के बड़े हुक्म पर अमल करूँगी। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। हम पर रहम कर ए खुदावंद। 12वां मकाम, यीशु सलीब पर मरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। जब दोपहर के करीब था तो सारी ज़मीन पर अंधेरा छा गया, और यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने जान दे दी। ऐ मेरे अज़ीज़ बचाने वाले, तू मेरे और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है।
हमारे गुनाहों के सबब बहिश्त हमारे लिए बंद था, बल्कि हमेशा का दुख दोज़ख में हमारे लिए तैयार था। लेकिन तू हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर और सबों का ज़ामन होकर हमारे बदले कफ़ारा हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अब तो हम बिल्कुल तेरे ही हो गए हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी तेरी खिदमत में सर्व करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। हम पर रहम कर ए खुदावन। 13वां मकाम, यीशु की लाश सलीब से उतार कर मरियम की गोद में रखी जाती है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। जब यीशु 40 दिन का हो गया था तो शमाउन ने मरियम से ये पेशगोई की थी कि तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। ए प्यारी और गमज़दा माँ, तूने हमारी खातिर खुशी से इस तलवार को कबूल किया और अपने अलाही बेटे के दुखों और बेइज्जतियों में शामिल होने से इनकार नहीं किया। इसलिए ए हमारी अजीज़ माँ, हम इन सब दुखों और मुसीबतों के लिए जो तूने अपने बेटे के साथ हमारी खातिर उठाई हैं, दिल से शुक्रगुज़ार हैं, और उनके लिए जो तुझे वाजिबी इज़्ज़त और प्यार देने से इनकारी हैं। हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। उनकी मुखालफत जो वो तेरी इज़्ज़त रोकने के लिए करते हैं ज़रूर नाकाम रहेगी, क्योंकि रूहुल कुद्स ने तेरी ही ज़ुबान से पेशगोई की है कि देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। चौदहवां मकाम, यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। ऐ खुदावंद, मरने का वक्त हमारे लिए भी जल्द आएगा, लेकिन अब हमें मरने से कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए ज़िंदगी का रास्ता खोल दिया है। हमें ये फ़ज़ल बख्श कि आइंदा हमारी रूह की नजात, जिसकी खातिर तूने अपनी जान कुर्बान की है, हमारा बड़ा फ़ख्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। हम पर रहम कर ए खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। आमीन।